हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। लास्ट क्लास में हम क्योंकि बैंक ऑडिट की बात कर रहे थे, तो बैंक ऑडिट पे हमने जो बात करी थी बेसिकली वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट क्या होनी चाहिए, देन व्हाट इज़ द डेडलाइन टू सबमिट द LFAR, then how we need to report to RBI, especially in relation to matters of fraud where anything something where some or the other thing is found susceptible by the auditor. ठीक है. Other than this, we had discussed about one of the important essays related to laws and regulations and fraud reporting. What is the responsibility of an auditor related to fraud? Essay 250 and Essay 240, which we are going to cover in detail in that particular essay. Then what is the duty to report on frauds, whether it has been committed by an employee of the company, any officer of the company. ठीक है. In that manner, in that case, what reporting, since they have clarified in their paragraphs that reporting is required to the chairman or managing director or chief executive officer of the bank, other than RBI. ठीक है. First reporting is required to RBI, then to the chairman managing director of the bank, and also to the central government. Because if any offense has been committed, offense of fraud has been committed in the company, in the bank, which has been carried out by the officers or employees of the company, and because of which the chairman managing director still are very careless towards whatever offenses, whatever malpractices have been followed, then in that case it becomes very important to report all these things to the central government, to take the charge of the, so that the central government can take charge of that bank and analyze what all foul plays are being seen, what all foul practices basically are being followed in that particular bank. Other than this, we had discussed about what should be the stages while conducting an audit, and in that particular case, I had just explained about 3 stages. Likewise, first was indebtedness, declaration of indebtedness. Then, in if audit has been conducted in the bank, then in that case, whatever internal assignments are carried out by any audit firm or any auditor, that particular audit firm or auditor should not be allowed to carry out the statutory audit in the same year of that particular bank. Understood? What I mean to say is that whatever internal audits, internal assignments have been carried out in the banks by the auditors, they should not carry the statutory audit as well. Internal auditors and statutory auditors in a particular year should be different. They should not be the same. Before starting any audit, planning is required, and for that SA 300 needs to be followed. Now, along with SA 300, there are 2 more essays which need to be considered. One was SA 220, another is SA 210. Then we talked about, before commencing any audit, the current auditor who has been assigned the task, assigned the position, he cannot accept that position unless and until he communicates with the previous auditor. That is, he obtains the NOC with the previous auditor. Now, fifth point also we talked about, not too much in detail, but we discussed that terms of audit engagements need to be agreed upon before beginning any audit. And this concept does not only apply to the bank, it applies to all the other organizations whose audit are carried out by the auditor, so that there is no confusion, because all the work gets delegated to the particular authorities, to the particular team members, and they manage their work accordingly, taking assistance from the main
team leader, you can say, or the engagement partner. Now, what does initial engagements mean? Because we have to, since we have started this topic, so we'll try to finish it up in this class. What does initial engagements mean? See, here what essay has been quoted is essay 510, initial audit engagements, opening balances. Auditor concludes that opening balances contain misstatements which materially affect the financial statements for current period, and the effect of the same is not properly accounted for and adequately disclosed. The auditor should express an adverse or qualified opinion. What does this statement mean? देखिए, अगर ऑडिटर को लगता है, क्योंकि सबसे पहले ऑडिट जब शुरू होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे बैंकिंग कंपनी हो चाहे कोई भी हो, उसमें सबसे पहली चीज जो देखी जाती है वो देखी जाती है ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंसेस चेक किए जाते हैं, लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस से मैच कराए जाते हैं। अगर ऑडिटर को लगता है कि ओपनिंग बैलेंसेस कहीं ना कहीं से इफेक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उनकी जो भी रिपोर्टिंग करी है वो कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं, उनको प्रॉपरली अकाउंट फॉर नहीं किया गया है या सही से डिस्क्लोज नहीं किया है, तो उस केस में ऑडिटर को एक कंडीशनल ओपिनियन देना पड़ेगा। अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक क्वालिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा या फिर एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स अराइज हो रही हैं या ऑडिटर को लगता है, या फिर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से ऑडिटर को क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देना होगा। दोनों के केसेस अलग अलग हैं। दूसरी बात जो इसमें इसके बाद जो करी गई है, दैट इज अबाउट असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क। देखिए, एंगेजमेंट रिस्क कब असेस किया जाता है? ऑडिट की कंसेंट देने से पहले, एक्सेप्ट करने से पहले, क्योंकि ये प्लानिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ऑडिटर इस पर्टिकुलर असेसमेंट में करेगा क्या क्या कैलकुलेट करेगा? वो ये देखेगा कि हम अगर इस पर्टिकुलर बैंक का ऑडिट करने जा रहे हैं तो हम इस पर्टिकुलर बैंक में जब जाएंगे, एंटर करेंगे, लोगों से मिलेंगे, मैनेजर से मिलेंगे, एम्प्लॉय से मिलेंगे, तो क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है उससे। बहुत ज़्यादा अगर मैनेजर और उसके डिपार्टमेंट और उसके एम्प्लॉयज़, उसके कलीग्स अगर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लटरिंग करने की कोशिश करेंगे, बेसिकली बहुत ज़्यादा अगर खातिरदारी करेंगे, तो उस केस में वो प्रेशराइज कर सकते हैं मुझे ज़्यादा डीप ऑडिट ना करने को, क्योंकि अगर वो मेरी खातिरदारी करेंगे, बहुत अच्छे से अगर मेहमान नवाजी करेंगे, बेसिकली क्योंकि होता है ये चीज़, स्टैट्यूटरी ऑडिट करने जब आप जाओगे अपनी आर्टिकलशिप टाइम में, आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि बैंक मैनेजर्स हो गए, वहाँ के टीम हो गई, वहाँ के जितने भी स्टाफ के लोग हो गए, वो सारे लोग ऑडिटर को और उसकी टीम को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। वो सबसे पहले आपके सामने काजू की प्लेट रखेंगे या फिर ड्राई फ्रूट्स किसी भी तरह के रखेंगे। आप मान लीजिए किसी और सिटी में आपको ऑडिट अलॉट हुआ है, आप मान लीजिए रहते उत्तर प्रदेश में ही हैं, लखनऊ में रहते हैं, लेकिन ऑडिट जो असाइन हो रहा है वो आपको चंडीगढ़ का हो रहा है, पंजाब का। तो वो कहेंगे कि आइए हम आपको पूरी सिटी घुमाते हैं, आइए हम आपको यहाँ ले चलते हैं, वहाँ ले चलते हैं, आइए हम आपको डिनर पे ले चले, लंच पे ले चलें। तो ये सब चलती हैं चीज़ें। अगर ये सब चीज़ें बहुत स्केल में चल रही हैं तो इसमें अब ये चीज़ तो प्री डिटरमाइन करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये अगर बाद में होगा तो तब तक तो ऑडिट एक्सेप्ट हो चुका होगा और प्रोसेस चल रहा होगा। तो ये सब चीज़ें ऑडिटर को ध्यान में रखनी होंगी कि उसे बिल्कुल फर्म रहना है, उसे बिल्कुल डगमगाना नहीं है। अगर उसे इस तरह की चीज़ें ऑफ़र हो रही हैं, मान लीजिए मील्स बहुत ज़्यादा ऑफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगर हॉस्पिटैलिटी शो कर रहे हैं बैंक वाले, और बैंक वाले एम्प्लॉयज़ हो गए,
उस चीज़ के लिए उसे कॉशियस पहले से ही रह के चलना पड़ेगा। वो पहले से ही माइंडसेट बना ले कि मेरे से या मेरी टीम से अगर ऐसा ट्रीटमेंट करने की कोशिश की जाएगी तो हम लोग पहले ही उसको रिफ्यूज़ करके और अपने काम की तरफ फोकस रहेंगे, ताकि जो भी रिस्क एसोसिएटेड हो या जहाँ जहाँ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो वो हम डिस्क्लोज कर सकें। क्योंकि ऐसे क्या होता है, अगर मैनेजर और उसके एम्प्लॉयज़ फ्लटरिंग करने की कोशिश करेंगे और फिर आप उनकी बातों में भी आ जाओगे, तो उस केस में वो बेसिकली यही चाहते हैं कि आप उनकी गलतियों को ओवरलुक कर जाओ। और जिस ब्रांच में बहुत ज़्यादा लेवल पे फ्लटरिंग होगी वहाँ बहुत ज़्यादा स्केल में गलतियाँ होंगी भी होंगी, ज़रूर होंगी, फ्रॉड्स वहाँ होंगे ही होंगे। फिर इसके अलावा जैसे नेक्स्ट एक पॉइंट क्या देखना होता है ऑडिट कंडक्ट करते टाइम, क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स होने चाहिए एंगेजमेंट टीम में। आपने एक टीम बनाई, उसमें 5 लोग हैं, 2 तो सीए ही हैं, बाकी 1 सेमी क्वालिफाइड है और 2 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जो सीए हैं बेसिकली जिनको आपने टीम में रखा है उन्हें बैंक ऑडिट का थोड़ा बहुत आइडिया हो, सेमी क्वालिफाइड स्टाफ को हो, आर्टिकल्स को भले ही अगर नहीं है इतना, क्योंकि आर्टिकल्स का वैसे भी लर्निंग स्टेज होता है, तो उन्हें जो हमारे सीएज हो हमारी टीम के वो उन्हें ट्रेन कर पाए अच्छे से, तो इतने केपेबल सीएज होने चाहिए। तो ऐसी टीम होनी चाहिए कि उसमें एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होने चाहिए। नहीं तो ऑडिट में जब बैंक ऑडिट का एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो किया कैसे जाएगा, जब पता ही नहीं है कि एडवांसेस चेक करते टाइम एनपीए कैसे निकाला जाता है। एनपीए मींस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, जिस टर्म के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब पता ही नहीं है एनपीए का कैलकुलेशन कैसे हो, तो फिर फायदा क्या उस पर्टिकुलर मेंबर को अपनी टीम में लाने का, उस प्रोफेशनल को अपनी टीम में लाने का, ठीक है। इसके अलावा क्या पॉइंट ध्यान में रखना होगा, देखिए बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा कोई टफ काम नहीं है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आपको सबको समझ आएगा एक बार अगर आप रीड करेंगे। अब यहाँ पे कोट हो रहा है एसए 315। एसए 315 का रेफरेंस क्यों दिया है यहाँ पे, क्योंकि एसए 315 बात करता है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट। Now here it has been mentioned as understanding the bank because currently we are talking about bank audits. वैसे अगर जनरलाइज व्यू लिया जाए तो जनरलाइज व्यू के हिसाब से एसए 315 का मीनिंग क्या है, बेसिकली हेडिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यहाँ पे ऑडिटर को ज़रूरी होता है कि वो ये देखे कि एंटिटी किस तरह की है, बैंक है तो बैंक किस तरह की है, कितने बड़े स्केल पे ब्रांच है, ऑपरेशंस किस लेवल पे हो रहे हैं, डिपॉजिट्स कितने हैं इनके, एडवांसेस कितने हैं, क्योंकि मेन बिजनेस बैंक का इसी से चलता है, ठीक। और इंटरनल कंट्रोल कैसा है, बैंक अपने जो जितनी भी करेंसीज है उसको प्रॉपर स्टोर कर रही है कि नहीं कर रही है, और जो कैश रिटेंशन लिमिट है उसको मेंटेन कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इस हिसाब से ही ऑडिटर रिस्क असेस कर पाएगा। और वो एंटिटी को जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेगा तब तक वो ऑडिट कमेंस ही नहीं कर पाएगा, चाहे कोई भी एंटिटी हो, बैंक हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, ठीक है। एंटिटी अंडरस्टैंड करने के बाद दूसरा मेन पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट होता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर है एसोसिएशन लेवल पे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल यानी कि बैलेंस शीट पीएनएल देखा, ठीक है। बैलेंस शीट पीएनएल तो अभी बने ही नहीं है तो कैसे देखेंगे, लास्ट ईयर के तो देखेंगे ना, ऑडिटर लास्ट ईयर का तो देखेगा ही देखेगा, ठीक, उसको एनालाइज करेगा। फिर अगर बैंक में मान लीजिए इंटरनल ऑडिट होता है तो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट देखेगा, कॉनकरेंट ऑडिट होता है तो कॉनकरेंट ऑडिट रिपोर्ट देखेगा, इंस्पेक्शंस होते हैं अगर तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट देखेगा। उसी हिसाब से ही तो उसको पता चलेगा ना कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं, कोई सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसीज हैं भी कि नहीं। एसोसिएशन लेवल मतलब एक तरह से हो गया मैनेजमेंट के लेवल पे कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मैनेजमेंट से बात करने में पता चल रहा है, जिस तरह से वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं
उनके बिहेवियर से पता चल रहा है। तो यही सब चीज़ें जो है ना असेस करने में हेल्प करती हैं ऑडिटर को कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है भी तो किस लेवल पे है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, जो कि सेकंड पॉइंट में। अभी तक हम लोग फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे थे जिसमें हमने ये सारे सब पॉइंट्स कवर किए, अभी सेकंड पॉइंट हो गया एंड अब आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट वही घूम फिर के वही बात आ गई, बैंक को समझना, उसके एनवायरनमेंट को समझना, उससे ऑडिटर को रिस्क पता चलेगा, उसके हिसाब से वो ऑडिट प्लान बता पाएगा। बहुत अगर आप सोचेंगे, देखिए जितने भी पॉइंट्स हैं आपको इंग्लिश में पढ़ते टाइम ऐसा लगेगा कि कितनी भारी भाषा लिखी हुई है, कितने टेक्निकल वर्ड्स यूज हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश की भाषा को आप हिंदी में कन्वर्ट करके बोल बोल के पढ़िए ना, या हिंदी में समझिए और उसे रिटेन भी हिंदी में करिए, क्योंकि हमारी मातृभाषा तो हिंदी ही है। उसे रिटेन भी हिंदी में करिए एंड देन जब टाइम आएगा लिखने का एग्जाम में, यू विल बी एबल टू फ्रेम इट इन इंग्लिश। देयर वुड बी नो प्रॉब्लम इन दैट because you have retained, you have stored it in Hindi, you know what that particular paragraph meant, what it tried to say, and now you are able to frame it in English. It's very simple. फोर्थ पॉइंट कहता है कि बैंक का काउंटिंग प्रोसेस समझो। ये जितने भी पॉइंट्स है ना, इनका सिंपल याद करने का तरीका आप लोग को पता है क्या है? इनको सिंपल याद करने का तरीका ये है कि इनका जितनी भी हेडिंग्स हैं, जो बोल्ड लेटर्स में आपको जितनी भी हेडिंग्स दिख रही हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, कंडक्टिंग एन ऑडिट, बस आप ये याद रख लीजिए, इसको पॉन्डर कर लीजिए अच्छे से। क्या? इंडेटनेस का डिक्लेरेशन, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, अलग अलग। प्लानिंग में अब अभी हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्लानिंग, प्रीवियस ऑडिटर के साथ बात करना, हिंदी में हो रहा है ये सारा, जितनी भी हम लोग रिकैप कर रहे हैं वो हिंदी में कर रहे हैं। ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स, इनिशियल एंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंसेस, एंगेजमेंट रिस्क देखना, एंगेजमेंट टीम बनाना, उसमें क्वालिफाइड लोग रखना, ऐसे 315 को फॉलो करना, रिस्क असेस करना, बैंक को अंडरस्टैंड करने में क्या मदद मिलेगी, रिस्क आइडेंटिफाई हो पाएगा, ऑडिट प्लान डेवलप हो पाएगा। इस तरह से आपको याद करना है। और ये एक बार में, मुझे पता है एक बार में लर्न नहीं होता है, इसके लिए आपको कम से कम 2-3 बार रीडिंग लगानी पड़ेगी। लेकिन इस चीज की श्योरिटी है कि जितने भी बोल्ड पॉइंट्स हैं, जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ना, ये आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगे। उसके अंदर का आप जो भी है इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जो भी स्टेटेड है मीनिंग, वो आप आराम से फ्रेम कर पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि आपको हेडिंग्स याद रहेंगी। और हेडिंग्स याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेडिंग्स के ही मार्क्स मिलते हैं पेपर में। जैसे स्टेप वाला कोई मान लीजिए आंसर है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, प्रोसेस, जैसे कोई प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना है, तो उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करते टाइम एग्जामिनर ये देखेगा कि आपने हेडिंग्स लिखी हैं, जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो लिखे हैं, वो पहले वो पढ़ेगा। अगर उसको दिख जाएंगे वो, तो हो सकता है अंदर का मैटर वो एक बार को पूरी तरह से ना पढ़े या ओवरलुक कर जाए। इसकी चांसेस रहे हैं, इसके चांसेस बहुत हैं। लेकिन अगर आपको मेन पॉइंट्स ही याद नहीं है, तो उसके अंदर का जो आपने लिखा है, हो सकता है वो ऑडिटर फिर उसको पढ़ने में इंटरेस्ट ना दिखाए। इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप हेडिंग्स को अच्छे से याद करिए। बैंक का अकाउंटिंग प्रोसेस अंडरस्टैंड करना, बैंक की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन जो भी मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है, किस तरह से अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो हो रही हैं, उसके बाद रिस्क कैसे मैनेज हो रहा है, क्या मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स बना रखे हैं ताकि रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके, ताकि फ्रॉड्स कम हो, मैनेजमेंट अपने लेवल पे क्या कंट्रोल्स कर रहा है। अब इस फिफ्थ पॉइंट के फिर सब पॉइंट्स हैं, तो पहले आप 5 पॉइंट्स अच्छे से लर्न करिए, सब मेन पॉइंट्स, उसके बाद सब पॉइंट पे आइए। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, 17 पॉइंट्स हैं, 18 पॉइंट्स, ठीक है। दिक्कत होगी शुरू शुरू में, लेकिन आ जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस मतलब मैनेजमेंट जो है बेसिकली कंट्रोल्स बना रहा है,
परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बना रहा है रिस्क को असेस करने में। अब इसके सब पॉइंट्स क्या हैं? सब पॉइंट्स ये हैं कि जितने भी TCWG हैं, TCWG यानी कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए या CEOs हो गए कंपनी के, वो रिस्क से रिलेटेड पॉलिसीज बनाए रिस्क को मैनेज करने की, और वो पॉलिसी बैंक के ऑब्जेक्टिव से, बैंक की स्ट्रेटजी से इन लाइन हो, सिंक्रोनाइज्ड हो। बैंक की जितने भी लॉज हैं, बैंक से रिलेटेड जो भी कंप्लाइंसेस हैं, उनसे इन लाइन हो। क्या? रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज। उसके बाद जो भी रिस्क बैंक के गोल को अफेक्ट कर सकते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया जाए, उन्हें मॉनिटर किया जाए। अगर उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता है, एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, तो एकदम लोअर लेवल पे लाया जाए। तो पहला पॉइंट था ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट इन कंट्रोल प्रोसेस। दूसरा पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क। तीसरा पॉइंट है कंट्रोल एक्टिविटीज। बैंक के पास प्रॉपर कंट्रोल्स होने चाहिए रिस्क को कम करने के लिए, क्योंकि ये फिफ्थ पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये रिस्क के ही बारे में बात करेगा। इससे क्या हो, बेसिकली रिस्क कैसे कम होगा? ड्यूटीज को बांट दिया जाए। सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है, दूसरा डिपार्टमेंट है, वहां पे कोई और कोई बैठा है, आप वहां पे कांटेक्ट कर लीजिए। आपको FD करवानी है, उसके लिए आप किसी और को कांटेक्ट करिए। आपको कैश जमा कराना है बैंक में, चेक क्लियर करानी है, उसका अलग डिपार्टमेंट है। तो ऐसे सेग्रीगेट होगा। रिस्क मैनेजमेंट के जो मॉडल्स हैं, मेथोडोलॉजीज हैं, उन्हें असेस और अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो अपडेटेड नहीं रहेंगी तो हो सकता है फ्रॉड्स कमी ना हो पाए। बैंक के पास ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? बैंक के लिए ज़रूरी है कि उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम बड़े ही स्ट्रॉन्ग हो, बड़े ही इंटीग्रेटेड हो, रिलायबल हो। मतलब ऐसे सिस्टम होने चाहिए कि लोग उन पे रिलाई कर सकें, डिपेंड हो सकें। जैसे बैंक की जो वेबसाइट होती है उसमें नेट बैंकिंग का ऑप्शन होता है, तो लोग क्या चाहेंगे, यूजर्स क्या चाहेंगे, अकाउंट होल्डर्स क्या चाहेंगे? वो तो यही चाहेंगे ना कि हमारा अकाउंट यहाँ पे है, हमने नेट बैंकिंग ले रखी है, नेट बैंकिंग जब भी हम एक्सेस करें तो हमें करेक्ट बैलेंस पता चले, हम अपने फंड्स ट्रांसफर कर पाए। ठीक है, तो इसकी पॉलिसी भी कौन बनाए? दोज चार्ज विद गवर्नेंस, जितने भी टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं। बहुत इजी पॉइंट्स है, देखिए बहुत ज़्यादा इसमें समझाने का नहीं है कुछ, मैं आपको बेसिक आइडिया दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें आपको डीप नहीं जाना है क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये। फिर सिक्स्थ पॉइंट आता है कि जितने भी एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स हैं वो आपस में डिस्कस करें ताकि बैंक के एनवायरनमेंट को और बेटर तरीके से समझा जा सके। उसके बाद ऑडिट स्ट्रैटेजी को बना लें। ऑडिट प्लानिंग हो गई, ठीक है। अब प्लानिंग का पर्पस क्या होता है? ताकि प्लानिंग का पर्पस ये होता है कि ऑडिट इफेक्टिव मैनर में हो, तो उसके लिए सबसे पहले क्या, ऑडिट कमेंस करने से पहले क्या होना चाहिए? ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाना ज़रूरी होता है प्लानिंग से पहले। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी बना ले, ये सेवेंथ पॉइंट में आ रहा है। देखिए प्लानिंग तो ऑडिटर ने करा, ऑडिट से पहले किया, कई चीज़ें उसने एनालाइज की, लेकिन अभी उसने फ्रेम नहीं किया। और वैसे भी हमने जब ऑडिट प्लानिंग स्ट्रैटेजी प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्ट्रैटेजी पहले बनती है। जैसे रिस्क की पॉलिसीज बन गई, स्ट्रैटेजी बन गई, अब प्लानिंग होगी। अब प्लानिंग को नोट डाउन किया जाएगा, प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो प्लानिंग हुई पहले, ऑडिटर ने प्लानिंग पहले की, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, प्लानिंग पहले हुई, लेकिन प्लानिंग को अब इम्प्लीमेंट करना है तो उससे पहले स्ट्रैटेजी बनेगी। स्ट्रैटेजी बन जाएगी जैसी तो ऑडिट प्लान इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी को बनाओ, एस्टैब्लिश करो, टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करो ऑडिट स्ट्रैटेजी को बनाने में। उसके बाद ऑडिट प्लान को लेआउट कर दो इफेक्टिव मैनर में। फिर नाइन्थ पॉइंट क्या कहता है? नाइन्थ पॉइंट कहता है ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम। ऑडिटर को ऑडिट प्लान को समराइज करना चाहिए, एक मेमोरेंडम बना के ही वो समराइज कर सकता है, जिसमें क्या क्या हो, बेसिकली समराइज्ड हो, ताकि जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको पढ़ने में समझने में दिक्कत ना हो, क्रिस्प और प्रिसाइज डेटा उन्हें मिले। इससे क्या होगा, ऑडिट प्रोसीजर्स पता चलेंगे कि उनका स्कोप एक्सटेंड
कितना है, कैसे परफॉर्म करना है, जितने भी सिग्निफिकेंट इश्यूज हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। उसके अलावा कोई भी एविडेंस जो वो प्लान कर रहे हैं वो एविडेंस मिल सकता है, किस तरह से रिस्क को रिस्पॉन्ड करना है वो पता चल सकता है, ठीक है। एंड इसके अलावा बेसिकली प्लानिंग के अलावा अब 10th पॉइंट क्या आता है, 10th पॉइंट आता है डिटरमिन ऑडिट मटीरियलिटी। अब यहाँ पे ऑडिटर को ये देखना होगा कि रिस्क और मटीरियलिटी में क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि जितनी कोई सिग्निफिकेंट कोई चेंज हुआ है, मान लीजिए वो मटेरियल है, उससे जुड़ा हुआ रिस्क भी है, वो रिस्क का परसेंटेज कितना है वो ऑडिटर को देखना है। और ये उसमें उस ऑडिटर की पूरी पूरी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वर्क करती है। फिर जब बैंक के बारे में ऑडिटर पढ़ेगा, अंडरस्टैंड करेगा, तो उसे ये भी देखना होगा कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज तो नहीं कैरी आउट हो रही हैं, या कोई ऐसी एक्टिविटीज या इवेंट्स एसोसिएटेड हो बैंक से जिसकी वजह से हो सकता है बैंक बंद हो जाए या लॉन्ग टर्म बेसिस पे वर्क ना करे और उसका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो ना हो। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है तो उसका मोटिव यही होता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए वर्क करेगी, ऑपरेशंस कैरी आउट करेगी। लॉन्ग टर्म की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, 10 साल 15 साल नहीं। लॉन्ग टर्म मीन्स लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग अपॉन दी एंटिटी। लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसे कभी कभी कैरी आउट होती हैं, जैसे बैंक में कोई मान लीजिए स्कैंडल हो गया बहुत बड़ा, उसका इफेक्ट ब्रांच लेवल पे भी आएगा, तो उससे ना बैंक की गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट होगा। फिर इसके अलावा ऑडिटर क्या देखे, इसके अलावा ये देखे कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है। अब ये जो पॉइंट है ना, 12th पॉइंट, हमने 11th पॉइंट तक डिस्कस कर लिया है, 12th पॉइंट से लेके 17th 18th पॉइंट तक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। इसमें हम ये बेसिल 2 फ्रेमवर्क भी देखेंगे, ये नई चीज़ हो जाएगी आप लोगों के लिए, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, इसलिए हम इसे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और बाकी हम एडवांसेस पार्ट अच्छे से कवर करना स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि एडवांसेस भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए, या फिर मेरे इंस्टाग्राम के पेज सीए ज्योति ट्यूटोरियल्स पे भी आप डीएम कर सकते हैं। So that's all for today. Next class में we'll be discussing about the remaining points and the advances portion. Thank you.